Hello everyone. We are studying physics for the preparation of GIC and PGT. Okay. Here we will do some numericals, some questions on the basis of vector calculus. Clear? In this question, what we have to do? We have to find out the divergence of given vector. There is a vector r is equals to xi plus yj plus zk. You have to find out the divergence. What is the divergence of vector r? So how you can find the divergence? You know, divergence vector r is equals to del vector r. Okay? You know that in the case of divergence, you will get a scalar quantity. You will get a scalar. Del is also a vector. Individually, it is a vector del. You know, there are two vectors. If you find the scalar quantity due to the vectors, due to two vectors, how you can find? आप कैसे निकालोगे? So by the help of dot product. By the help of dot product, you can find the scalar. Is it clear to everyone? Okay. So how you can find the divergence? Do you know the value of del operator? Yes, we know. What is the value of del operator? We know that the value of del operator is I dA by dx plus j d by dy plus k d by dz. This is the del operator. Okay. Now what you have to do? You have to find the scalar product of vector r. So what is vector r? This is the vector r. Put this value here. So you get xi plus yj plus zk. Okay. Now this is divergence of vector r. Now what you have to do? You have to do a scalar product between two vectors. How you can find? आप लोग सब जानते हो, i की जो मल्टीप्लाई है यू विल डू विद द i, j की मल्टीप्लाई j से करोगे, k का प्रोडक्ट k से करोगे, एंड यू नो दैट i डॉट i गिव्स यू 1. सो और बाकी i डॉट j गिव्स यू 0. तो अब इसकी प्रोडक्ट बाकी से 0 होगा, तो इसका इससे करो आप लोग. तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस d बाई डी वाई ऑफ y प्लस d बाई डी जेड ऑफ z. दिस इज del डॉट r. Okay. Now what is the differentiation of x? It will be 1. Okay. What will the differentiation of y? It will be 1. What is the differentiation of z with respect to z? It will be again 1. What is the value of the divergence of vector r? This will be 3. Okay. 3 is a scalar number. Okay. This is a scalar quantity. Okay. This is the right answer. Now let's do the second question. What the second question says? The second question says us that if the potential energy of a particle, okay, this is a particle this is the potential energy, okay, half kx square plus y square. Then the force acting on the particle is, this is asking about the force. Okay, force is a vector quantity, but energy is a scalar quantity. Okay, by using the scalar you have to find out the vector. स्केलर से वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो? मैंने आप लोगों को बताया था, स्केलर से आप वेक्टर निकाल सकते हो बाय डूइंग ग्रेडियंट.
नहीं मालूम तो पिछली वीडियोस चेक करो आप लोग, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ग्रेडियंट से हमें वेक्टर मिलता है, किसका? स्केलर से वेक्टर हमें मिल जाता है। ग्रेडियंट हम किसका करते हैं? स्केलर क्वांटिटी का करते हैं। अगर हम स्केलर क्वांटिटी का हम ग्रेडियंट निकाल देते हैं हम लोग, तो व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो this is a scalar quantity and you have to find out a vector quantity. How you can? So you have to find out a gradient of u. This will be is equals to del u. Now what is the value of del? This is I t by dx plus j d by dy plus k d by dz. Now put the value of u, half kx square plus y square. Okay? Okay. अब आप क्या करो, इसकी 1 by 1 सबसे मल्टीप्लीकेशन करो. So now multiply this quantity by i वाले, जो i वाला है ना, इससे मल्टीप्लाई करो. तो क्या होगा? d by dx k by 2 x square plus y square into I cap plus d by dy k by 2 x square plus y square into j cap plus d by dz x square plus y square into k cap. यहाँ k by 2 ऑलरेडी है. So k by 2 is a constant. Put this value here outside, या इसके बाहर रखो. अब d के साथ कौन है? x. तो x का डिफ्रेंशिएशन होगा, बाकी को 0 कर देगा. तो यहाँ वैल्यू क्या है? 2x. x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 2x. ओके. और यहाँ पे आई कैप बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस. सिमिलरली इसके यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करो. सो देयर यू विल गेट k by 2. ये तो 0 हो गया, इसका क्या बचा? 2y. दिस इज j कैप. यहाँ पे तो z है ही नहीं, तो सबको 0 कर देगा ये. ओके. नाउ व्हाट यू विल गेट? kx i कैप प्लस ky j कैप. ओके. तो आपको सबको समझ में आ गया कि आप यहाँ कॉमन भी ले सकते हो. तो एक्स आई प्लस वाई जे, दिस इज द फोर्स. ओके. तो ध्यान रखना आप लोग, ये क्या मिला आपको? फोर्स मिला. ये आपको फोर्स देगा. ध्यान रखना, अगर एनर्जी का ग्रेडियंट निकालोगे तो यू विल गेट फोर्स. ओके. अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, हमें कैसे पता लगा ये फोर्स है ना? कोई बात नहीं. एक तो ये बात तो पक्का पता लग गया आपको कि ये आई और जे तो वेक्टर क्वांटिटी दिखाएगा. पहला इंडिकेशन तो ये है कि सामने वाली क्वांटिटी पक्का वेक्टर होगी. व्हाट इज के, है ना? तो यहाँ के क्या होगा आप जानते हो? ये एक्स क्या है? लेंथ. एक्स होता है लेंथ. और के क्या होता है? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा किसी स्प्रिंग के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? u बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर. एक्स क्या होता है? एक्स कितना दबाया है स्प्रिंग को. और के क्या होता है? स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट. अच्छा, अब क्या होता है? तो के बराबर होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स डेवलप करता है स्प्रिंग. वो उसका के होता है कि 1 mm दबाया मैंने तो स्प्रिंग ने कितना फोर्स दिया. दूसरा स्प्रिंग उठाया मैंने, उसको 1 mm दबाया मैंने तो उसने कितना फोर्स दिया. तो हर स्प्रिंग का मैंने 1-1 mm दबा के मैंने पता लगा लिया कौन स्प्रिंग कितना ज़्यादा फोर्स देता है. तो जो स्प्रिंग जितना यूनिट लेंथ पर जो स्प्रिंग जितना ज़्यादा फोर्स देता है वो उसका के होता है. दिस इज अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट. क्लियर? तो के क्या हुआ? न्यूटन पर मीटर. न्यूटन पर मीटर. ओके. तो यहां है न्यूटन पर मीटर.
और यहाँ क्या है मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर से कटा है तो क्या है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या होता है जूल, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी में न्यूटन मीटर क्या होता है जूल ही तो होता है। सबको समझ आ गया नहीं आ गया, ठीक है। अब ये जरा यहाँ देखो, इससे हमें यूनिट पता लग जाएगा। सब लोग ध्यान से देखो, के क्या है न्यूटन पर मीटर, और एक्स क्या है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, क्या आया न्यूटन, ठीक। तो व्हाट इज दिस, दिस यू विल गेट फोर्स, दिस इज द यू गॉट द फोर्स। तो ध्यान रखना डाइवर्जेंस ऑफ यू आपको क्या देगा, एक वेक्टर क्वांटिटी देगा, और वो वेक्टर क्वांटिटी किसका डाइवर्जेंस किसका निकाला आपने, पोटेंशियल एनर्जी का निकाला। तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी का डाइवर्जेंस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, फोर्स मिलेगा। ये आप ध्यान रखना, ऐसा न्यूमेरिकल एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो इसका आप लोग बिल्कुल केयरफुल हो जाना इस क्वेश्चन को देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो एग्जाम में डाइवर्जेंस के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैंने देखे हैं, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखे हैं वेक्टर से, तो डाइवर्जेंस के क्वेश्चन काफ़ी पूछते हैं आपसे, है ना। तो देयर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द डाइवर्जेंस ऑफ ए पोजिशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर हम क्या करते हैं, मान लो पोजीशन वेक्टर सब जानते हो आप लोग कि किसी पॉइंट की पोजीशन दिखाता है ओरिजिन से, है ना। तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन क्या होता है 0 0 पर इनिशियल पोजीशन जहाँ से स्टार्टिंग करना है हम लोगों को। तो ये हो गया z, ये हो गया x और ये हो गया y। सपोज दिस इज अ पॉइंट, क्लियर। अब ये पॉइंट का जो पोजीशन है वो x, y, z है, मतलब x लेंथ x एक्सिस की तरफ, y लेंथ y एक्सिस की तरफ, एंड z लेंथ अलोंग द z एक्सिस, ओके। दिस इज वेक्टर r। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर r, सो वेक्टर r इज इक्वल्स टू xi, मतलब x i की तरफ, यहाँ पे i होगा, यहाँ पे इस साइड j होगा और इस साइड k होगा, xi प्लस yj प्लस zk। This is the position vector. Now what you have to do, you have to find out the divergence. So divergence of vector r, how you can find, divergence of vector r gives you scalar, और दो वेक्टर के स्केलर कैसे निकालोगे, डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। ये बिल्कुल अभी हमने ऐसा किया था, इसका आंसर आप लोगों को पता है 3 आएगा, है ना। ये आप लोग करके देखना, डाइवर्जेंस निकालना सबको आता है, ओके। तो वेक्टर आर की रखना वैल्यू, यहाँ पर डेल की वैल्यू रखना, डेल की वैल्यू आर की वैल्यू रख के दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कर देना, तो 1 + 1 + 1 करके 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए उसके बारे में, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये कुछ न्यूमेरिकल्स करने आ गए होंगे डाइवर्जेंस के, ठीक है। और कर्ल के भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आप लोगों को मैं, कर्ल कैसे करते हैं हम लोग, तो उसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। कर्ल का अगर आपसे पूछेगा तो आपको पता है कर्ल हम कब करते हैं, हम दो वेक्टर्स के ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे हमें वेक्टर क्वांटिटी ही मिलती है। तो दो वेक्टर के प्रोडक्ट करने से हमें जब वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो वी विल व्हाट वी हैव टू डू, यू हैव टू डू कर्ल, ओके। तो डेल क्रॉस जो भी क्वांटिटी होगी, है ना, तो आपको उसके लिए कर्ल करना पड़ेगा।